Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a perfect strategy as to how can you ace CLAT 2023 from scratch by preparing for just 4 months. Okay, so I'm pretty sure that a lot of you will have this question in mind as to कि last के 4 महीने में कैसे होगा, and I'm going to do away with that particular doubt today because I'm pretty sure कि last के 4 महीने में a lot of students realize that they want to become a part of the preparation, but there are a lot of questions that cross our mind. कि कैसे करेंगे, how do we start, because starting is the most difficult part about CLAT. So in this particular session, listen to me till the end and I will try to make your CLAT preparation as smooth as possible with this particular strategy session, right? First and the foremost thing that a lot of you, as I told you, would have in mind is कि शायद हमसे अब नहीं हो पाएगा because there are a lot of students who have been preparing for quite some time. They've been scoring good marks in mock tests also. तो हमसे कैसे होगा because we are now going to become a part of the preparation. See, this is something अगर आप ये सोचोगे ना, so this is not going to help you in any way. So मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें सोचने का कोई पॉइंट नहीं है. So what you can do is you can start your preparation with the right strategy and do not think कि होगा या नहीं होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे एग्जाम लेने के बाद में. So let's work in the last 120 days and make sure that we are able to maximize our potential. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा something I am going to be discussing in this session in complete detail here, right? First and the foremost thing you need to understand is CLAT is not a very concept oriented paper, it's a practice oriented paper. इसका क्या मतलब होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, when we go to schools, generally we see how we work in school is हमें टीचर्स कुछ क्लास में पढ़ाते हैं, हम कुछ उसमें से लिख लेते हैं या फिर कुछ वो नोट्स बनवा देते हैं. जनरली वही एग्जाम में आता है. तो वो क्या होता है, दैट इज मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड. द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन टॉट टू अस बाय आवर टीचर आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. दैट इज नॉट हाउ CLAT वर्क्स. So every section is CLAT is more practice oriented than concept oriented. So only 30% of it is concepts, whereas 70% is practice. So in order to become a part of the CLAT preparation, you have to be really good at practicing things. So आप जो दिन में मान लो for example say studying for 8 hours a day, 8 hours में से you will have to spend good 5 hours at least in just practice. You'll have to practice as much as you can क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, it's not just about solving a lot of questions correctly, it's about solving them quickly also. Right? This brings me to my second point that you will have to read a lot during your preparation. तो न्यूज़पेपर रीडिंग को एक हैबिट बनाना पड़ेगा. इवन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स नाउ, यू कैन स्टार्ट रीडिंग देम इवन नाउ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट के 4 महीने में अगर पढ़ोगे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ स्ट्रगल. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि यार हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हमें 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, फिर भी कुछ आधा अधूरा समझ में आ रहा है. एंड दैट्स ओके बिकॉज स्टार्टिंग में नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए. सो ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी सिंगल डे. मेक इट अ कंप्लीट हैबिट कि हम लोग सुबह जो भी आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में, रीड इट विदाउट एनी फेल. आपकी कन्वीनियंस के लिए फॉर ऑल द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इन द हिंदू, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज एक फाइल डालता हूँ सुबह 10 बजे, जहां पर मैं डिस्कस करता हूँ कि आप कौन से आर्टिकल्स आज ठीक से रीड कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर न्यूज़पेपर और आपका टाइम ना वेस्ट हो. सो यू कैन रेफर टू दैट फाइल ऑल्सो. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आप लोग समझ पाओगे कि हम लोग कई बार क्या, इवन इफ स्टार्ट अ प्रिपरेशन और हमको ना कहीं थोड़ा अंदर लग रहा होता है कि शायद मुश्किल से ही होने वाला है, 4 ही तो महीने बचे हैं. उसके लिए क्या कर सकते हो, व्हेन यू स्टार्ट अ प्रिपरेशन ना, स्टार्टिंग से ही फॉर्म भर दो. तो CLAT 23 का फॉर्म अवेलेबल हो गया. यू कैन फिल दैट फॉर्म बिकॉज वंस वी हैव अ टारगेट कि हमें 18 दिसंबर को एग्जाम देना है, हमने फॉर्म भर दिया है, 4,000 रुपए जा चुके हैं, तो हम लोग ना थोड़े ज्यादा सीरियस रहते हैं एग्जाम के लिए. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव CLAT 23 और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे हो कि यार करना है नहीं करना है, यू कंफ्यूज, यू कैन फिल द फॉर्म. वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा क्योंकि अब करना ही पड़ेगा. राइट, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा 4 महीने में प्लीज कीप दिस इन माइंड कि एक एक दिन बहुत ज्यादा मैटर करेगा. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप 2 सेक्शनल टेस्ट कर सकते हो. राइट, 2 सेक्शनल टेस्ट, आई मीन कि 2 सेक्शंस के सेक्शनल टेस्ट डेली लेवल पर कर सकते हो. चाहे वो इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के आपने पेयरिंग कर दी, यू कैन पेयर मैथ्स विद इंग्लिश. ठीक है, कोई भी अलग अलग पेयर्स बना के रोज वो कर सकते हो. ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप एक सुबह उठकर एक डेली सा प्लान बनाओगे, बेसिक सा, कि व्हाट डू आई हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर डे. क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जो लास्ट के 120 डेज हैं, इनमें एक एक दिन बहुत क्रूशियल होगा. तो अगर आप एक भी दिन वेस्ट करोगे ना, सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर इन द लास्ट 4 months, यू कांट हैव अ लैक्स एटीट्यूड और प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड. वी हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमें एग्जाम किसी भी तरह से क्लियर करना है. वी नीड टू बी रियली पैशनेट अबाउट दैट विदाउट थिंकिंग अबाउट द फेलियर्स. ठीक है, फेलियर्स हम 18 दिसंबर के बाद में सोचेंगे, अभी फेलियर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम पे प्रॉपर्ली प्रिपेयर करेंगे. राइट, उसके अलावा वन थिंग that does not demand a lot of practice but it demands a lot of topics is current affairs. So a lot of you who is going to be starting your preparation in the last 4 months,
करंट अफेयर्स का बैकलॉग इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, बिकॉज बैकलॉग पिछले 6-8 महीने का आपको करना पड़ेगा. So how to cover that? So for that you can refer to certain compendiums. ठीक है, I also release my compendium for 12 minutes to CLAT every month on the Telegram channel. आप वो भी refer कर सकते हो. But that has 12 topics, 12 most important topics of the month. There are more comprehensive compendiums like Drishti IAS या फिर Vision IAS, but they are way too comprehensive. तो कई बार क्या होता है ना, हमको वो compendium देख के लगता है कि अभी जैसे 6-8 compendium ऐसे करेंगे तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा. So what you can do for that is, if you like my style of teaching, you can come to my classes also. I take a class at 5 p.m. and one at 9:15 p.m. every single day. And you can come to those classes. In those classes, I teach new topics as well as backlog topics. So I'm pretty sure कि अगर मैं दिन में 5 क्लास लग जाऊंगा 5 घंटे, तो आप वो अटेंड नहीं कर पाओगे, because obviously everybody can't attend 5 classes in current affairs every single day, because उनको बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है. So what you can do is attend just 2 classes. रीड द न्यूज़पेपर्स, और उसके अलावा कुछ मैं आपको पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स बताऊंगा कि आपको कौन से देखने हैं इन दोज क्लासेस. सो दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट? सो यू कैन टेक अ क्विक सब्सक्रिप्शन एज वेल ऑन अनअकैडमी एंड यू कैन गेट 10% ऑफ यूजिंग माय कोड मालपानी और केशव लाइव. ठीक है, आपको मैंने इस सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आई विल मीट यू एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 5 p.m. and at 9:15 p.m. as well, and that is going to complete your CLAT preparation for current affairs, because 85% of the questions in current affairs in CLAT 22 were from the classes that I had taken there. ठीक है, वहां से 85% क्वेश्चंस आ गए थे. सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड रियली वेल इन करंट अफेयर्स एंड दे वेंट टू सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज. सो यू कैन बी दैट नेक्स्ट पर्सन इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद मी. नाउ एक बहुत नॉर्मल सी बात है ये, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट, कि अगर आप लास्ट में प्रिपेयर करोगे, सो देयर विल कम टाइम्स वेयर यू विल फील ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो. मतलब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में तो कई बार हमको लगता ही है, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी लगता है कि यार मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है. सो वही सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग, नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग कॉन्सेप्ट्स और लर्निंग देम और अंडरस्टैंडिंग देम. इट्स अबाउट बीइंग वेरी स्ट्रांग मेंटली ऑल्सो, राइट? सो क्लैट के लिए आप तब इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे जब ये आपकी फर्स्ट और ओनली प्रायोरिटी है. ठीक है, क्लैट कैन बी योर फर्स्ट एंड दी ओनली प्रायोरिटी, बिकॉज उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है अगले 4 महीने, राइट? फॉर दोज हु आर इन स्कूल, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर क्लैट. ठीक है, क्लैट के बाद आराम से आपको एटलीस्ट 2.5 महीने मिलेंगे. उसमें कोई भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटेज भी ला सकता है. सो प्लीज मेक क्लैट योर फर्स्ट एंड दी ओनली प्रायोरिटी टिल December 18 एंड डू नॉट deviate from it. I understand there's a lot of pressure from the school authorities as well to do well in boards, pre-boards होंगे, उससे पहले कुछ टेस्ट वगैरह होते रहते. प्लीज डू नॉट केयर अबाउट दैट. यू हैव टू क्लियर क्लैट, बिकॉज क्लैट अगर क्लियर हो गया तो बोर्ड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको, राइट? Another very important thing, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं बनना है. सो द लास्ट 4 months यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो शायद आपने खुद को भी अभी तक दिखाया नहीं है. ठीक है, तो यू हैव टू बी दैट इन द लास्ट 4 months. मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यू डोंट हैव टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय और अ गर्ल इन योर क्लास. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अ टॉपर इन द क्लास. यू हैव टू बी एन एवरेज स्टूडेंट हु इज विलिंग टू वर्क हार्ड. अगर वो मेहनत करने को तैयार है, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने को तैयार है, देन दिस इज द राइट एग्जाम फॉर यू. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर एज वेल. Right? So that's it about this from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel. उसके अलावा आपको कोई भी डाउट भी होता है, you mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you guys. Please subscribe and press the bell icon and don't miss any update from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys.